Okay, so we will start meiosis. Now what is meiosis? Meiosis is reductional division. Reductional का मतलब क्या हुआ? Reductional division. Whereas mitosis was equational division. Where I just now wrote here that they are forming the exact copy. Yes, sir. Meiosis is not forming exact copy. Here the number of chromosomes will reduce to half. देखिए, in any of diploid cell जानते हैं हम? Diploid cell is the one in which the chromosomes are in 2n or 2x, whatever way you want to write. Now, in the 2n or 2x cell, जो है one n come from father and one n come from mother. ये आप मान लीजिए father से and this come from mother. They fuse together to form zygote, which will have 2n. Now, actually, what happens in the sexually reproductive organisms? So both the parents are contributing chromosomes, and the genes are on the chromosome. So, how many chromosomes they will contribute? Suppose they are contributing one set from father, one set from mother. The child will have two sets. The two sets वाला जो है that will again get married. So, two sets from here, two sets from there. So, four sets there. That way, the number of chromosomes will go on increasing. So, if we have to make the number of chromosomes stable, then what we'll have to do is that the two sets which is there in each individual during gamete formation they have to reduce into half, so that the one set will have here, one set will be there, and both the parents one set will come back in the zygote, and again the number of chromosomes will be restored to 2n or 2 sets. So this is uniformity. We human beings have got 46 chromosomes, 23 come from father, 23 come from mother. From generation it is like that, unless some mutation takes place. Okay? So this is how actually the number of chromosomes are restored. The reductional division is actually doing what? They are helping in making gametes. These sex cells are called gametes, which are contributed by the father and mother. So the gametes contains one set of chromosomes. Now there are individuals which are having only one set of chromosomes. All the bacteria are haploid. तो फिर उनमें sexual reproduction नहीं हो सकता क्या? There are number of fungi which are haploid. There are fungi which are diploid. So there are number of other organisms in which the number of chromosomes are only one set, but they are also showing sexual reproduction. Then क्या करा? The two sets are there, that is diploid. But even the unicellular one set chromosomes वाले जो organisms they may be reproduced by sexual reproduction. By now they are sexual reproduction, but they may even switch over to sexual reproduction in case of danger, in case of adversity, in case of abnormality. So what we use this system is then so the normal cell is having one set of chromosomes, n number of chromosomes here, n number of chromosomes here. They will form gamete. Gamete by mitosis. वहाँ क्या होता है? gamete कैसे बनते हैं? meiosis. यहाँ पे कैसे बनते हैं? mitosis. So the gamete will have n number of chromosomes. They will fuse together. Zygote will form with 2n. दुनिया में every organism zygote have only 2n number of chromosomes. Now what will happen? The individual body जो है, जो adult body है उसके अंदर तो one set ही, यहाँ पे 2 set हो गए. तो अब क्या होगा? अब इसका meiosis कर दो. अब इसका meiosis कर दो. तो meiosis हो जाएगा. And meiosis will result for haploid individuals. So here the meiosis is taking place after zygote formation, and in diploid organism meiosis was formed before zygote, मतलब gamete बनता है. तो उस वाले gamete meiosis को कहते हैं gametic meiosis. When meiosis is used in forming gametes, it is called gametic meiosis. When meiosis is used in dividing zygote, it is called zygote meiosis.
ठीक है, zygotic meiosis and gametic meiosis. Two terms. I think it is clear to you. बता दो. Okay. Now, how meiosis is different from mitosis? देखिए, शुरू का प्रोसेस सेम है. सेल साइकिल में इंटरफेस इज सेम. इंटरफेस में G1 फेज, S1 and G2 फेज आर सेम. M फेज में आपके चालू होगी प्रॉब्लम. क्या होगी? meiosis में the cell divide and the karyokinesis take place two times. Karyokinesis, that is division of nucleus, that completes in two phases. Meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है? तो meiosis 1 यहाँ पे ले लेते हैं. ये meiosis 1 यहाँ पे ले लेते हैं. तो इसके भी चार फेज हो जाएंगे. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, followed by meiosis 2. So the same four process will complete by prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, followed by ये तो क्या है, telophase है ना. अब आ जाएगा इसका साइटोकाइनेसिस. ठीक है. So there we studied okay. This is clear? तो ये तो आउटलाइन हो गया. इन स्टेप्स में हमको चलना है. बट इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है. We will have to concentrate our whole attention in this phase, prophase 1. बाकी सब तो ऐसे हो जाएंगे. So if prophase 1 is done, remaining others will be just because if you are studying mitosis, meiosis will go in the same line. चलिए prophase 1 ले लेते हैं. So we are doing meiosis 1. अच्छा, हम ये समझ लेते हैं कि meiosis है, इसके दो स्टेप जो है ना, meiosis 1 and meiosis 2. इसमें से meiosis 1 is actually reductional and meiosis 2 is equation. So meiosis 2 is just equal to the mitosis. Meiosis 2 is equal to the mitosis. And meiosis 1 जो है वही नंबर वाला उसके नंबर को आधे होते हैं. So meiosis 1 अब पढ़ो. meiosis 1 का फर्स्ट स्टेप, that is prophase 1. prophase 1 जो है that is very long. पूरे meiosis का जो टोटल टाइम लगा उसका 75% से ज्यादा टाइम केवल prophase 1 ले लेता है. And prophase 1 itself is further divided into 5 phases. इनको कहेंगे लैक्टोटीन, zygotin, fatidine, PACH1, diplotin and diamines.
lactotine, zygote, pyridine, nucleotine and dikinesis. Lactotine chromosomes start condensation of chromatids. Chromatids start condensation. यहाँ पे कंडेंसेशन कंटिन्यूस एंड क्रोमेटिड्स क्या हुआ यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम याद है आपको? होमोलोगस क्रोमोसोम जो फादर से आया उसका एकदम कॉपी जो है मदर से आएगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स जाइगोटीन टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये पेयरिंग कर रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। अब आता है पैकेटिंग। पैकेटिंग के लिए हमको ज्यादा जगह हम तो इसको मिटा देते हैं और हम यहाँ लेते हैं पैकेटिंग। Now packaging is a very important step, क्या कहते हैं, change which is known as crossing over. Crossing over क्या होता है crossing over? देखिए ये मान लीजिए क्रोमोसोम है जो फादर से आया है, ये जो है क्रोमोसोम है वो फादर से आया है along with its sister chromatid, और ये आया मदर से। तो एग्जैक्टली सेम साइज, शेप और पोजीशन ऑफ सेल में और उसकी जीन्स लोकस वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। जीन में वेरिएशन जरूर हो सकते हैं, यहाँ बालियां या भूरियां का हो सकता है, पर रहेगा आपका कलर कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर का होता है, पर हेयर पे कलर मैं मदर के इसको जो है व्हाइट कलर से बना देता हूँ जस्ट टू शो द डिफरेंस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स वन अनदर, कंडेंसेशन बिगेन, क्रोमोसोम थोड़े मोटे थिक हो गए और एक दूसरे के आसपास आ गए। अभी क्या होता है? नेक्स्ट टू इट these chromosomes will overlap one another at certain points randomly। कहाँ पे ओवरलैप होंगे? nobody knows, होंगे नहीं होंगे nobody knows, एक जगह होंगे दो जगह होंगे nobody knows। मान लीजिए हमारा ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे और यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, कौन ओवरलैप कर रहा है? क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो उसकी कॉपी नहीं है वो वाले। देखिए फादर क्रोमोसोम इज ओवरलैप एट मदर क्रोमोसोम, होंगे नहीं होंगे, how many times it will be there, this is all depending on chance। ठीक है, जिस जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं ये पॉइंट में ये पॉइंट, इनको हम क्या कहेंगे? कियामेटा। क्या है ये? कियास्मोफॉर्म। अब चाय बोलो किया बोलो, हमारी टीचर ने हमको किया पढ़ाया, आपके टीचर ने चाया पढ़ाया, कोई काइटिंग होता है कोई चाइटिंग। Okay, so these are randomly overlapping with one another। अभी क्या होंगे? When they overlap at one another at certain points, this is the point where they exchange their genetic segments। इनको ये पीस पसंद आ जाते हैं, है ना? जैसे किसी का पेन एरिया, पेन का कवर एरिया, पेन एरिया से हमारे पास
पेन हमारा नीला है, लेकिन हमने अपने पड़ोसी का रेड पेन का ढक्कन लगा लिया, बोले यार ये अच्छा लग रहा है मेरा, तो ये ले लो, ठीक है। वेरी ऑफन वी डू इट। तो द सेम वे क्रोमोसोम आल्सो दे लाइक ऑन अनदर स्पीशीज, so what they do, they exchange the genetic material होते आगे तो दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक काला था, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, इसने व्हाइट वाला पीस ले लिया, बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक काला था और यहाँ से यहाँ तक था, that pieces are being exchanged। So exchange कहाँ पर होंगे, वो आगे होंगे डिप्लोइड में। Extension is taking place in diploid. Overlapping is taking place here. Packeting is only exchange. This what I am making, यहाँ पे हो गया। अब ये एक दूसरे से पार्ट एक्सचेंज करेंगे, this takes place in where? In diploid. And in diagnosis they will separate away from one another. Like I have तेरे रास्ते चल, मैं मेरे रास्ते। Whereas the condensation is still continuous, condensation is still continuous. तो diploid में क्या होंगे? The metal is being exchanged and dikinesis they are separated. ये एक्सचेंज हो रहा है वो डिप्लोइड में, सेपरेशन हो गया डाइकाइनेसिस। ये डिप्लोइड में डाइकाइनेसिस सेपरेशन, ये तीनों चीजें ये पैकेटिंग है, एक्सचेंज हुआ और ये डाइकाइनेसिस हो गया, सेपरेट हो गए, काम खत्म हुआ, लेन देन जो होने थे हो गए, ठीक है। अब ये जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो अपन को ये समझ लेना है नॉन सिस्टम ऑफ एडिट कोड इंपॉर्टेंस क्या है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, चार जीन्स हैं, तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, इसमें भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी होते हैं। इस वाले को मान लीजिए हमारे पास स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है और ये स्मॉल डी है, तो इसमें भी यही होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आने के बाद क्या, यहाँ तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। यहाँ क्या है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। यहाँ क्या है, कैपिटल ई, स्मॉल सी, स्मॉल बी, कैपिटल। यहाँ क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। So as a result what happens, the genetic combination varies. Genetic combination will vary. So इनसे बनने वाले जो गैमीट होंगे, they will have different set of genes. So what will happen when they fertilize? They will bring variation. When they fertilize, they will bring variation. So with the same parents, एक ही parents same है, पापा भी वही है, मम्मी भी वही, उनके अगर मान लीजिए 5 बच्चे होते हैं, पांचों बच्चे में वेरिएशन आएंगे, दो दे आर contributing same type of chromosome, but during crossing over exchanges have been done, and now which chromosome will go and fuse, we don't know. तो पहले वेरिएशन कैसे आ रहे थे, केवल रेंडमिटी पे, फादर के कौन से क्रोमोसोम, मदर के कौन से क्रोमोसोम मिले, और फादर के और मदर के क्रोमोसोम में पहले ही अदला बदली हो गई और फिर वो वेरिएशन मिल गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वेरिएशन, द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इंक्रीजेस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए भगवान जो है ना वो पहले शुरू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे, वो चाहते ही नहीं थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए सकता। He wanted the world should be एकदम clean, जितने भी पाप है 99% पाप जो है यहीं से आकर के लगते हैं। अरे दिखावा ही क्यों करते हैं, अगर सारे अरे 4 दोस्त होते हैं वो एक जैसे रहते हैं तो उनमें कोई दिखावे की ऐसी टेंडेंसी नहीं रहती है, लेकिन एक छोरी आ जाती है सामने, ओ उसके लिए फिर वो जब नया बेल्ट लाएगा, नया पेन लाएगा, नया ये नया वो, दिखावा शुरू है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवन इट्स नॉट ओनली इन द मतलब ह्यूमन, इट्स इन एनिमल, एनिमल तो जान ले लेते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो
जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ऑल द इंडिविजुअल्स यूज्ड टू बी सेम, सो वेरिएशन देयर वाज नॉट देयर। तो भगवान को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, जरा सा सर्दी हो गई ये सब मरने लग गए, जरा सी गर्मी हुई सब मरने लग गए, जरा सा रेडिएशन आया, उस टाइम तो रेडिएशन के सब्सटेंस ज्यादा थे ना, हाफ लाइफ टाइम से कम होते थे, आज के हिसाब से तो काफी कंफर्टेबल स्टेज में, बट व्हेन द अर्थ वाज मस्ट हैव फॉर्म्ड दैट टाइम रेडिएशन सब्सटेंसेस देयर क्वांटिटी वाज वेरी हाई, उनका हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से कम होते अब तो काफी कम हो गया और आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा। तो रेडिएशन के सब्सटेंसेस देयर रेडिएशन, ओजोन वाज नॉट फाउंड, देयर रेडिएशन, सो प्लेंटी ऑफ, तो उस टाइम क्या है मतलब उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो, तो भगवान ने कहा यार यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसर्ट, क्योंकि पहले वेरिएशन कैसे आ रहे थे कि म्यूटेशन से आ रहे थे वो रेडिएशन और ये से, अब उनको लगा यार ये तो कम हो जाएगा, तो वेरिएशन शुड बी एट द रैपिड रेट, मतलब स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग है, क्योंकि वो 20 साल तक शायद जिएंगे ही नहीं, उससे पहले मर ही जाएंगे, तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आए तो बच्चे ही नहीं, मतलब कोई बच्चा ही नहीं है रिप्रोडक्शन करने लायक, सो इसलिए ही हैड टू यूज दिस मैकेनिज्म, सो उन्होंने वेरिएशन का नया तरीका लगा, वापस आया होगा, फिर उसने एडम को बोला होगा यार कोई सो जा, मैं तेरी पसली निकालता हूँ तो एक स्त्री बनाऊंगा, पता ही नहीं कैसा हुआ मतलब उन्होंने कहा कि एडम को उन्होंने सुला दिया, उसकी पसली निकाली, उससे तो ये एडम था क्या? नहीं मेरी बात सुनो, केवल ह्यूमन में मेल और फीमेल बना देते क्या? कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, इनमें भी इनको सबको सुला दिया होगा, मेल सुअर को सुला दिया होगा, उसकी पसली निकाली, कैसे हुआ? एनीवे यार ठीक है, वी शुड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, अदरवाइज साइंस ऑफ रिलीजन की बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी, अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है, आप क्या बात तो चलो व्हाटएवर, बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केम लिटिल लेटर, इनिशियली ऑल द ऑर्गन्स यूज्ड टू बी रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन ऑफ एसेक्सुअल, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का एक और तरीका है, पहली बात तो फिर सर्टेन कंट्रीब्यूशन इज टेकिंग फ्रॉम मदर, सर्टेन फ्रॉम फादर, बट मदर इज ऑलवेज नॉट कंट्रीब्यूटिंग सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, पहली बात तो मदर के अंदर भी हाफ क्रोमोसोम के फ्रॉम फादर एंड मदर, मतलब मम्मी के अंदर नाना और नानी के क्रोमोसोम, पापा के अंदर दादा और दादी के क्रोमोसोम, विच क्रोमोसोम दादा वाले इधर से आए, नाना वाले इधर से आए, बच्चे के अंदर गए वो अलग, इधर से नानी का आया, उधर से दादा के गए अलग कॉम्बिनेशन, इधर से दादी के आए, इधर से नाना के आए अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पहले भी थी लॉट, तो हमारे ह्यूमन में ऐसा मान लेते हैं 23, मैं यहाँ पे 23 A लिखता हूँ, 23 B लिखता हूँ, उधर 23 A लिखता हूँ, 23 B लिखता हूँ, दोनों के 23, मान लीजिए किस की A आ रही है, किसका A और किसका B आ रहा है, A अगर मदर के लिए स्टैंड करते हैं, B फादर के लिए स्टैंड करते हैं, तो यू सी द कोनोटेशन मतलब प्रोबेबिलिटी की कितनी पॉसिबिलिटी है, एंड इसको ऑल द मोर इंक्रीज कर दिया क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ईच क्रोमोसोम, नाउ वन क्रोमोसोम में सर्टेन जीन्स, जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम उसमें तो ओवर 2000 बहुत सारा जो मतलब जीन्स मिल रहे हैं, तो द नंबर ऑफ जीन्स जो मिल रहे होंगे उनके अंदर वेरिएशन आ जाएगा, अंडरस्टूड व्हाई आई हैव टेकन मोर टाइम ऑन प्रोफेज वन, लाइफ के अंदर भी ये प्रोफेज वन सबसे ज्यादा टाइम है, प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज, 5 सब फेजेस, लेप्टोटीन, zygote, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, zygote केवल कंडेंसेशन कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैकेटिन, जैसे क्रोमोसोम से क्रोमोसोम में ओवरलैप एंड कीराटोइड फॉर्म, डिप्लोटीन एक्सचेंजेस इज बीइंग डन, डाइकाइनेसिस सेपरेशन, बोले बात ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव बीन डन, नाउ क्या करना है, अब आगे चला पढ़ना है कि जाना है, किसका है जाना है या पढ़ना है, व्हाट इज शी, वो तो मुझे पता है, मेटाफेज 1 प्रोफेज खत्म, मेटाफेज 2, अच्छा प्रोफेज में ज्यादा चेंजेस नहीं कंटिन्यू है, सेम जैसे पर क्या लिखे हाइड्रोजन न्यूक्लियर disappear, chromosome, centrosome divided into two centroles will move towards opposite pole, they will same.
एक जैसे वाले, they will lie together. ये father का chromosome and this is mother chromosome. Along with their sister chromatid, they will lie together in the same spindle. If you remember in mitosis, in prophase what we did, इनको चारों को चार अलग-अलग spindle में बैठाया था हमने. यहाँ पे कैसे बैठेंगे? दो बैठे हैं जोड़े से. Father, mother, mother, father, जो भी. Rest everything is same as you written in the metaphase of mitosis. The chromosome will contain, it will become most clearly visible. They will arrange in the center of the metaphase plate. है ना? Spindle fiber in the right. Everything is same. Next is anaphase one. अभी क्या हो गया? anaphase में कोई spindle fiber का contraction. But here what happens now? One of the chromosome along with the sister chromatid comes here. Another chromosome along with its sister chromatid comes here. और इधर से एक क्रोमोसोम और उसका सिस्टर क्रोमेटिड इधर, ये क्रोमोसोम और उसका सिस्टर क्रोमेटिड इधर. मतलब homologous pairs are separating. Homologous chromosomes pairs are separating from one another. Moving to the opposite pole. अब anaphase के बाद telophase आ रहा है. मतलब telophase संचय वाली स्थिति है. Telophase one may occur, may not occur. It is so short कि we may say that the telophase आए ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि पहले telophase आएंगे, दूसरे membrane बनेगी, फिर है ना prophase two में जाके वापस disappear होंगे. तो भैया आप हटा ही दो ना. तो देखिए it depends from species to species how long it will be there or not there. How two nuclei are formed. Each nucleus will have one set of chromosome only now. अब वो चाहे father का होगा या mother का होगा. These are two different type of chromosomes. इसके अंदर चार क्रोमोसोम थे शुरू में. अभी कितने रहे? दो. कितने रहे? 1 2 3 4. अभी कितने रहे? दो. So the number of chromosomes are reduced to half. Probability can be different. ये हो सकता है कि दोनों पापा वाले आ गए, या एक पापा वाले मम्मी का, बड़ा वाला पापा और छोटा वाला मम्मी का, या छोटा वाला पापा का बड़ा वाला मम्मी का, vice versa. So this will create variation. Crossing over से variation आ ही गए. Crossing over से variation आ ही गए. यहाँ दोबारा variation आ गया. और तीसरा वेरिएशन आएगा फर्टिलाइजेशन. मेटाफेज टू कर लेते हैं. प्रोफेज टू बनाने से तो मतलब नहीं है. प्रोफेज टू इफ इट ऑल इज देयर, इफ इट ऑल टेलो वन इज देयर तो प्रोफेज टू रहेगा. इफ टेलो वन इज नॉट देयर, प्रोफेज टू इज आल्सो नॉट देयर. प्रोफेज टू के बाद मेटाफेज टू कर लेते हैं. प्रोफेज टू द थिंग्स आर सेम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ये और ये कुछ. अभी क्या है? यहाँ एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस थे. इधर देखो ध्यान, इधर दो न्यूक्लियस. मैंने इस सेल को देखिए साइटोकाइनेसिस हो सकता है, इससे पहले हो सकता ना भी. हमने माना कि नहीं. अभी क्या है? दो ही क्रोमोसोम है, एक एक के ऊपर बैठा है. एक ये, एक ये और एक ये. So now in anaphase 2 what will happen? Anaphase 2 what will happen? These chromosomes they will separate from one another. Spindle fibers will contract and ये याद रखना, हम दो क्रोमोसोम बना रहे हैं ना, एक दूसरे बनाना है. ये बड़ा ये दोनों छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं. यहाँ पे ये छोटे हैं, ये बड़े हैं ना. ये जो तो सॉरी ये तो यहाँ एक और एक स्पिंडल फाइबर सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड्स आर एक्चुअली सेपरेटेड. वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, यहाँ क्या सेपरेट हो रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड.
ओके, सो टेलोफेज 2 में क्या हो जाएगा, ये एनाफेज 2 है, ये टेलोफेज 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमारे पास क्रोमोसोम और उसका सिस्टर क्रोमेटिड है, पेड इन है, ईच क्रोमोसोम एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। और मैंने कहा था जब तक सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई है वो वन एंटिटी मानी जाएगी। जैसा हमने कहा था दो भाई मिलकर एक दुकान चला रहे हैं तो वो दुकान एक ही मानी जाएगी। जिस दिन भाई आपस में लड़े और उन्होंने दो अलग अलग एक दुकान कर दी तो हर दुकान अलग अलग मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड अटैच इट विल बी कंसीडर्ड वन क्रोमोसोम। जैसे ये सेपरेट हुए हैं अब आप हमको क्या कहेंगे, तो अब कितने न्यूक्लियस हो गए थे, दिस इज फॉर्मिंग वन न्यूक्लियस, दिस इज फॉर्मिंग वन न्यूक्लियस, दिस इज फॉर्मिंग वन न्यूक्लियस वन ये, और इसमें एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस हिसाब से आपका और उसके बाद साइटोकाइनेसिस से दे विल बी सेपरेटेड एंड द फोर सेल्स विल फॉर्म। Meiosis results in formation of four cells. Mitosis results in the formation of two cells. Mitosis, both the cells were exactly identical. Here the four which are all different from one another. ठीक है? Since they were identical, they were sharing the characters. Since they are unidentical, variation आएगी। Importance क्या है? Significance क्या है? Meiosis की। Meiosis significance है कि ये number of chromosomes restore रखते हैं sexually reproducing organism by forming a gametes with one set of chromosomes. I'll repeat again. Meiosis की importance क्या है? They are restoring the same number of chromosomes. They are restoring or maintaining same number of chromosomes in all the sexually reproducing organisms or sexually reproducing organisms. By reducing the number of chromosomes, into one set during gamete formation. अब दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन ऐड करता है बाय क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इट एड्स वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड ये क्या है? रैंडम सेपरेशन। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ेगा मियोसिस क्या काम आएगा, गैमेट बनाने के लिए। माइटोसिस क्या काम आएगा? 5-6 महीने में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में निकालेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है केवल ही माइटोसिस से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी केवल एक बार मियोसिस होगा। किसी भी सेल में मियोसिस एक ही बार हो सकता है। बिकॉज़ वन मियोसिस का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ। दोबारा करके कैसे भी आधे कर देंगे तो कर ही नहीं सकते। कैंसर को छोड़ो, अभी यहाँ तक मेरी बात समझ, कैंसर को भी डिस्कस करो। ये समझ गया? मियोसिस कैन अकर इन अ सेल्स वन लाइन ऑफ डिसेंट के अंदर ओनली वन टाइम। उसके बाद उसका फ्यूजन होना ही होगा, नहीं होगा तो उसका दोबारा मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस वन सेल कैन हैव एन नंबर ऑफ टाइम माइटोसिस। एक बार एक हुआ, उससे दो बच्चे हुए, दो लोग का दोबारा माइटोसिस हुआ, 4 हो गए, उसके बाद दोबारा हुआ 8 हो गए। मियोसिस में ऐसा नहीं हो सकता एक बार में 4 बन गए, 4 के 16 बन गए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब आता है आपकी कैंसर। देखिए सेल विल डिवाइड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन अ बॉडी। अभी मेरे सेल में यहाँ पे हाथ का मान लीजिए कि ये हाथ की जो स्किन बना रही है उसके अंदर मैं मान लेता हूँ 50 मिलियन सेल्स। इफ ड्यू टू सम रीजन आई गेट ए कट ओवर एंड मान लीजिए 50,000 cells are dead. So soon the cells which are nearby they will have less pressure. अभी के बंदे में एक दूसरे से तो एक टाइट इसके अंदर है, जैसे हमारा ये मेरे कोट पे रखा है, बटन लग गया। अभी अगर मेरा पेट का साइज टूट जाए तो बटन टूट जाए, उसके बाद तो पेट पे आ जाती है, दिक्कत पड़ सकती। ठीक है, किसने बांध रखा था उसको? बटन में बांध रखा था, चारों तरफ कपड़े में बांध रखा। सेम वे हियर द सेल्स वर bounded by neighboring cells. No sooner there is a cut, the force is removed. तो इसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। एज
contact is removed, no sooner contact is removed, the cell will come to know कि अब हमको divide करना है, as far as the contact is again restored. So meiosis cancer में क्या हो रहा है, वो contact inhibition fail हो जाता है. ज़्यादा cells don't even come to know उनको divide करना है या नहीं करना है, they will go on dividing. क्यों? अब क्या कारण है कि सेल के अंदर ये माइटोसिस और मियोसिस कौन देगा सेल को करने के लिए? अभी हमने कहा कॉन्टैक्ट इनिबिशन, बट उसके लिए कोई ना कोई जीन तो होगा ना. देयर इज अ जीन व्हिच इज एक्चुअली बिगिनिंग द सेल डिवीजन. अब दैट जीन इटसेल्फ इज स्पॉइल्ड. ये हमारे स्विच होते हैं ना, घर में हमारे मेरे घर में बाहर वाला जो बाहर की लाइट का स्विच है वो ऐसा लूज होता है, तो 2-3 बार ऐसे टप करना पड़ता है तब जलता है, नहीं तो मर्जी का मालिक नहीं चाहे तभी जल जाए और जब चाहे तब बत्ती रहे. ठीक है, तो एक द क्रोमोसोम द जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन दैट स्पॉइल्स. सो उसको क्या मालूम है डिवाइड करना है नहीं करना है. जैसे वो जीन एक्टिव होगा सेल विल बी स्टार्ट डिवाइडिंग, जैसे वो इनएक्टिव होगा सेल डिवीजन विल फेल. सो सेल डिवीजन जो है वो कई बार वो जीन खराब होने के कारण. अब वो जीन को खराब करेगा म्यूटेशन. किससे होता है म्यूटेशन? UV rays, class 10th में पढ़ा था. When we sit in the sun for a long time, UV rays are there. Sometimes we are passing through the X-ray tunnel in the airport. X-ray घुस गई किसी सेल के ऊपर, exactly उस पॉइंट के ऊपर उसको खराब कर दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया. भाई देखिए तो चांस की बात है, जो चांस की बात है. तो कोई ये नहीं कि कभी एक्सरे लेने वाले आप उस रूम में खड़ा रहते हैं, आपको आधार रूम करके बोला हिलना मत तो बाहर चल जाएगा. वो भी कह सकते हैं 1 सेकंड के लिए तो आया, मिली सेकंड के लिए आया, और वो तो बड़े शान है, वो तो बाहर चल जाते हैं. मैं जो बड़े को आपको लिया भेजते और लगा के छुट्टी करो वहाँ पे लगा वो करके बोले सर हिलना मत, ये यहीं पे लगाना, तो ऐसे ही खड़ा रहा बाहर चलेगी पड़ते लगे आगे है ना. सो एक्सरेज है, गामा रेज है, समटाइम्स some chemicals are there, sometimes infrared है, sometimes mechanical forces है, that will uncap that cell. वो जो जीन है, sorry not cell, that gene, वो जीन के ऊपर एक कैप लग रहा है जिससे वो इनएक्टिव है. उस कैप को हटा दो वो एक्टिव हो जाए. And as it is activated, cell division will begin. तो contact inhibition में वो वापस बंद होने का सिस्टम था, यहाँ नहीं है. वो जीन खराब हो गया तो आप वो करते ही रहते unless you remove that particular part and throw it out. ठीक है, तो ये है आपका कैंसर. So I think mitosis meiosis, its importance, significance, differences, mitosis meiosis में difference. Mitosis और meiosis एक ही बार होता है, इसमें दो बार. पहली बात mitosis occurs in all types of cells. Meiosis occurs only in the sex cells. Mitosis किसी भी सेल में एक ही बार हो सकता है, ये नहीं. माइटोसिस किसी भी सेल में एक नंबर हो सकता है, ये एक बार हो सकता है. वो हमेशा मतलब हैप्लॉइड और न्यूक्लियोइड दोनों में हो सकते हैं. ये केवल और केवल डिप्लॉइड में है, उसमें न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड कर रहा है. हाँ, एक न्यूक्लियस एक ही बार कर रहा है, इसमें न्यूक्लियस 2 बार कर रहा है. उसका प्रोफेज जो है वो शॉर्ट होता है, इसका प्रोफेज वन इज लॉन्गेस्ट. प्रोफेज इज नॉट डिविजिबल इनटू सब स्टेजेस. प्रोफेज इज डिविजिबल इनटू 5 sub stages. Crossing over not taking place, crossing over taking place. फिर आ जाता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज. यहाँ मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर्स आर अरेंज्ड देयर, ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज अरेंज्ड. एनाफेज में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स आर सेपरेटेड. इस तरह से करते चले जाओ. एंड में लिख देंगे वहाँ पे 2 सेल्स बनी है, यहाँ पे 4 सेल. फंक्शन में लिखो डिफरेंस कि भैया ये इसी चीज के काम आती है, रिपेयर रिजनरेशन रिप्लेसमेंट है, वो ये केवल और केवल लिमिट बनाने के काम. मियोसिस 1 और 2 में डिफरेंस आ सकता है. मियोसिस 1 में क्या डिफरेंस है? प्रोफेज 1 इज लॉन्गेस्ट, मियोसिस 2 में छोटा ही रहता है. प्रोफेज 1 इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, यहाँ पे नहीं होता. प्रोफेज 1 जो है उसमें 5 क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, प्रोफेज 2 में नहीं हो रहा है. मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं एंड सो ऑन. ठीक है, तो दैट्स ऑल. अब आप चाहें यहाँ बैठे, चाहें तो